হেল্ল' এভৰিৱান। এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আজি জনাব বিচাৰোঁ যে SPMIS একাডেমীয়ে মেইনছ ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি কেতিয়াৰ পৰা কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম, আমাৰ এপ্ৰ'চ কেনেকুৱা হ'ব, ইয়াতে আমি কি কি কভাৰ কৰিম, এই গোটেই কথাখিনি আমি আপোনালোকক জনাম। গতিকে আহক আমি চাওঁ যে আমাৰ মেইনছৰ ক্লাছেছবিলাক কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব আৰু ইয়াতে কি কি থাকিব। আহক আমি ইয়াৰ মেইনছ ক্লাছেছ আৰম্ভ হ'ব ফ্ৰম 3rd এপ্ৰিল 2023। গতিকে অহা সোমবাৰৰ পৰাই আমি মেইনছ ক্লাছেছ আৰম্ভ কৰি দিম। এই যোনটো আমাৰ মেইনছ কোৰ্চ আছে, ইয়াতে ইনক্লুডেড থাকিব ডেইলি ক্লাছেছ। যোনে আমাৰ ক্ৰেছ কোৰ্চ কৰিছিলে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে তেওঁলোকে জানে আমাৰ ডেইলি ক্লাছেছ যেনেকৈ হয়। গতিকে ইয়াতো ডেইলি ক্লাছেছ হ'ব, য'ত মেইনছৰ লগত ৰিলেটেড গোটেই ছাবজেক্টখিনিয়ে কভাৰ কৰা হ'ব। এথিক্স এণ্ড ইণ্টিগ্ৰিটি, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন, গভৰ্নেন্স, ছ'চিয়েল জাষ্টিছ, ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটি, ইণ্টাৰনেল ছিকিউৰিটি, আছাম ৰিলেটেড টপিকছ, এছে, এই গোটেই ছাবজেক্টখিনিৰ ওপৰত ডেইলি 2-2.5 ঘণ্টাৰ ক্লাছ হ'ব। এই ক্লাছখিনিৰ লগতে আৰম্ভণিৰ পৰাই আমি ষ্টুডেণ্টৰ এনচাৰ ৰাইটিং ডেভেলপ কৰাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিম, আৰু সেইকাৰণেই ডেইলি মিনিমাম 2টা কুৱেশ্যন ইয়াতে দিয়া হ'ব, যাৰ এনচাৰ ষ্টুডেণ্টে লিখিব লাগিব। আৰু এই কুৱেশ্যনকেইটাৰ লগতে মডেল এনচাৰো প্ৰভাইড কৰা হ'ব, যাতে ষ্টুডেণ্টে সেই মডেল এনচাৰৰ লগত নিজৰ এনচাৰটো কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰে আৰু কৰি পেলাই গম পায় যে ক'ত ক'ত তেওঁলোকৰ লেকিং হৈ আছে, ক'ত ক'ত কি কি পইণ্ট তেওঁলোকৰ মিছ হৈছে। গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰাই আমি এনচাৰ ৰাইটিংটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম, কাৰণ এনচাৰ ৰাইটিঙে এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা মেইনছত মানে গ্ৰহণ কৰে, ৰাইট? ইট প্লেজ আ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল। গতিকে আৰম্ভণিৰ পৰাই ইয়াতে এনচাৰ ৰাইটিং হ'ব। আৰু এটা বস্তু আমি ইয়াতে ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ পৰা, যে ষ্টুডেণ্টৰ মাজত এটা বস্তুত এটা উইকনেছ আমি সচৰাচৰ দেখিবলৈ পাওঁ, আৰু সেইটো হৈছে তেওঁলোকৰ লেংগুৱেজ। যিহেতু মেইনছত এনচাৰ ৰাইটিঙেই মেইন হয়, ইয়াতে নলেজতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আমি কেনেকৈ এক্সপ্ৰেছ কৰিছোঁ, কিমানখিনি এক্সপ্ৰেছ কৰিব পাৰিছোঁ। গতিকে লেংগুৱেজৰ ওপৰত কামাণ্ড থকাটো খুবেই দৰকাৰ। আৰু যিহেতু সেই উইকনেছটো আমি ধৰিব পাৰিছোঁ, আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ ষ্টুডেণ্টৰ মাজত, গতিকে এইবাৰ আমি সেই ইছ্যুটোকো এড্ৰেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আমাৰ যোনটো মেইনছৰ কোৰ্চ থাকিব, তাতে আমি লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে ইয়াতে এটা লেংগুৱেজ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমো থাকিব, য'ত আমি ষ্টুডেণ্টৰ লেংগুৱেজটো ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিও ইয়াতে বহুত ফ্লাৱাৰী লেংগুৱেজ বা বহুত হাই-ফাই ইংলিছ নালাগে, তথাপিও যোনখিনি বেছিক গ্ৰামাৰ আছে সেইখিনি যাতে ষ্টুডেণ্টৰ ক্লিয়াৰ হয়, য'ত যোনটো শব্দ ইউজ কৰিব লাগে এপ্ৰপ্ৰিয়েট শব্দ যাতে তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে, গতিকে সেইবিলাকৰ ওপৰতো আমি ইয়াতে গুৰুত্ব দিম। এই মেইনছৰ ক্লাছৰুম কোৰ্চৰ উপৰিও আমি আৰু এটা বস্তুৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ কৰি থওঁ, আৰু সেইটো হৈছে টেষ্ট ছিৰিজ। ছ' মেইনছ কোৰ্চৰ উপৰিও আমাৰ টেষ্ট ছিৰিজ আমি ইয়াতে লঞ্চ কৰিম। টেষ্ট ছিৰিজত টোটেল 18 টেষ্ট থাকিব। আমাৰ GSৰ 6খন পেপাৰ, এছে আৰু বাকী 5খন GS পেপাৰ। প্ৰত্যেকখন পেপাৰৰে ইয়াতে 3টাকৈ টেষ্ট থাকিব। ছ' টোটেল নাম্বাৰ অফ টেষ্ট উইল বি 18। এই টেষ্ট ছিৰিজটো যোনে এপিয়াৰ কৰিব, যোনে দিব, তেওঁলোকৰ এনচাৰ শ্বীটৰ ইভালুৱেশ্যন হ'ব, আৰু ইভালুৱেশ্যন কৰি তেওঁলোকক ফিডবেক দিয়া হ'ব যে মানে কাৰ ক'ত কি পইণ্ট মিচিং আছে, কোনটো এনচাৰত তেওঁলোকে কি কি আৰু এড কৰিব পাৰিলে হয়, প্ৰেজেণ্টেশ্যনত কাৰ ক'ত অসুবিধা আছে। গতিকে এই টেষ্ট ছিৰিজটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকক ফিডবেক দিয়া হ'ব, যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে জানিব পাৰিব যে তেওঁলোকৰ কিমানখিনি ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈছে। ডেইলি এনচাৰ ৰাইটিং কৰাৰ পিছত যেতিয়া টেষ্ট ছিৰিজ তেওঁলোকে দিব, তেতিয়া তেওঁলোকে নিজকে এছেছ কৰিব পাৰিব। আৰু এই টেষ্ট ছিৰিজত যোনকেইটা টেষ্ট আছে তাৰে ডিছকাশ্যনো আমি প্ৰভাইড কৰিম। গতিকে মোটামুটি আমাৰ মেইনছৰ যোনটো কোৰ্চ আছে, তাতে সেই ক্লাছৰুম কোৰ্চত সেই ছাবজেক্টকেইটা আছে, তাৰোপৰি আমাৰ ইয়াতে টেষ্ট ছিৰিজ এটা আমি ইয়াতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। এই কোৰ্চটোৰ বিষয়ে আৰু কিছু কথা আপোনালোকক জনাবলৈ মই সত্যজিৎ ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। थैंक यू सर। देखिए, अभी मैं उस विषय पर डिस्कस करूंगा दैट इज ट्रबलिंग द स्टूडेंट्स मोस्ट हु हैव अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स दैट वाज हेल्ड ऑन 26 मार्च। सबसे जो मेजर कंसर्न आपका है आज के डेट में वो ये है कि क्या मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा, मेरा इतना स्कोर बन रहा है, मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, ये आप सबके दिमाग में चल रहा है। और ऐसे हालात में शुड आई गो फॉर मेंस, शुड आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, राइट? और आप इसी कारण से उम्मीद कर रहे हैं कि कोई आपको एक
प्रेडिक्ट करके बता दे कट ऑफ किस रेंज में होने वाला होगा, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ कट ऑफ प्रेडिक्ट करना इस बार इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। यू सी यूपीएससी में इस नए पैटर्न के हिसाब से लगभग 9-10 सालों से एग्जाम चल रहा है और लगभग वही फिक्स नंबर ऑफ सीटें रहती हैं हर साल। तो इस कारण से यूपीएससी में कुछ हद तक कट ऑफ प्रेडिक्ट करना फिर भी अब पॉसिबल है इंस्टीट्यूट्स के लिए, लेकिन उसमें भी काफ़ी ज़्यादा डेविएशन हो जाता है। जो प्रेडिक्ट करते हैं जो फाइनल कट ऑफ आता है कई दफ़ा नीचे भी आ जाता है। आप एपीएससी में सोचो इस बार बस दूसरी बार सेकेंड टाइम इस नए पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है, पेपर जो है वो पिछले बार का और इस बार का कोई कंपैरिजन है ही नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। और तीसरा सीटें 3 गुना ज़्यादा हैं, 3 टाइम्स। ऐसे हालात में इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कट ऑफ को प्रेडिक्ट कर पाना काफ़ी डिफिकल्ट है। मतलब मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। इट कैन बी एनीथिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल मेल, इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 60 to 85, एनीथिंग जनरल मेल। तो बाकी और कैटेगरी के स्टूडेंट्स आप उस हिसाब से देख लीजिए। मैं बस आज के दिन कम से कम 5-6 ऐसे स्टूडेंट से मिल चुका हूँ कि सर पिछले साल इंटरव्यू दिया था, इस बार 64 बन रहे हैं, इस बार 62 बन रहे हैं। पिछले साल इंटरव्यू दिया यानी कि पिछले साल टॉप 1000 में थे, इस बार टॉप 10,000 की बात चल रही है, राइट। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि सर अगस्त से तैयारी की थी, अब नवंबर से तैयारी शुरू की थी, 90 बन रहा है, 91 बन रहा है। सो द आइडिया इज़ कि नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी बोलना काफ़ी कठिन है कि एग्जैक्टली कट ऑफ कहाँ होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप 60 पे हों और आपका जनरल मेल हो और आपका क्लियर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आप 80 पे हों और शायद से ना हो। तो ऐसे हालात में सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या मैं तैयारी शुरू करूं कि ना करूं। कल भी मैं कह रहा था कट ऑफ प्रेडिक्शन के बाद कि करो ना, कुछ नॉलेज ही तो आएगा, कुछ एक्सपीरियंस ही तो मिलेगा। लेकिन इसमें एक दूसरा कंसर्न निकल करके आ रहा है कि सर कैसे तैयारी करें। ठीक है, आप तैयारी शुरू करो, मैंने ये तो कभी कहा नहीं है अब कि आप कैसे करना है, आप अपने लेवल पे कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमें सपोर्ट चाहिए भी, कोचिंग चाहिए भी, लेकिन एट द सेम टाइम हम सर्टेन नहीं है कि हमारा मेंस में लिखने के लिए हमारा कॉल आएगा कि नहीं आएगा। इसके लिए स्टूडेंट्स के सजेशन पे ही हमने एक सॉल्यूशन निकाला है। आप सबके तरफ से ही सजेशन आया है। यूट्यूब में मैं कल आज देख रहा था, एक बच्चा बार बार मैसेज कर रहा है कि 30 to 40% ले लिया जाए। मेरे कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी वो कमेंट में था, और बाकी का सर छोड़ दिया जाए, क्या पता सिलेक्शन ना हो। तो इसके लिए हमने सॉल्यूशन देखा है। देखिए, हमारा जो मेंस का कोर्स अभी जो चिन्मय सर ने अनाउंस किया है वो 9,500 का है, 19,500 का है। 4 से 5 महीने का ये कोर्स है, ठीक है। उम्मीद है 1 महीने के बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। जिस तरह से प्रोएक्टिवनेस दिखा रही है एपीएससी, 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो आप एडमिशन लो। अगर आपको एसपीएम के साथ तैयारी करनी है तो आई एम नॉट सेइंग कि एसपीएम ही से ही तैयारी करनी है मेंस की, राइट। लेकिन अगर आपको एसपीएम के साथ तैयारी करनी है मेंस की तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, पैसे का भी बहुत ज़्यादा चिंता मत कीजिए कि पूरा फीस एक बार में दे देंगे और नहीं हुआ तो। आप तैयारी शुरू कीजिए 5,000 फीस दे करके, यानी कि पहले महीने का फीस दे करके आप एडमिशन लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए। अगर ये महीने भर बाद जब रिजल्ट आता है तब अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप या तो ड्रॉप आउट कीजिए, अदरवाइज किसी और कोर्स में इसको एडजस्ट कराना है तो वो करा सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। और अगर आपका क्लियर हो जाता है प्रीलिम्स तो फिर आप रिमेनिंग फीस दे करके बाकी का आगे का 3 महीने का और कोर्स कंप्लीट कीजिए। सो दिस इज हाउ वी फाउंड कि दिस कुड बी द मोस्ट बैलेंस्ड अप्रोच और सॉल्यूशन फॉर द सिचुएशन इन विच वी ऑल आर। अगर आपको लगता है, इफ यू ऑल बिलीव कि वी नो वेयर एग्जैक्टली द कट ऑफ वुड बी एंड इफ वी प्रिटेंड लाइक यस वी हैव सर्टेन आइडिया, दैट इज नॉट ट्रू। टू बी वेरी ऑनेस्ट, गिवन द वेरिएबल्स, no one can predict the range and 60 to 85 cannot be a prediction, right? इतना बड़ा range cannot be a prediction. Almost everybody is lying in this range.
सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप जनरल मेल हैं फिर भी अगर आपके 60 मार्क्स बन रहे हैं, तैयारी शुरू कीजिए, राइट। अपने लेवल पे करना चाहते हैं अपने लेवल पे कीजिए, अगर हमारे साथ करना चाहते हैं हमारे साथ कीजिए। आई डोंट थिंक नाउ इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग फाइनेंशियल बर्डन ऑन एनीबडी, राइट। और अगर बाकी कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं तो उसी हिसाब से अपना स्कोर देख लीजिए और तैयारी शुरू कीजिए, बाकी जो होगा देखेंगे, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। एनीथिंग, अच्छा वन मोर थिंग दैट आई वाज अबाउट टू, सर आप बता दीजिए, फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ है नहीं है सर। एक बस बात सर और ऐड कर देता हूँ कि सर ने जनरल मेल के लिए बताया, अकॉर्डिंगली अपने कैटेगरी वाइज भी कम कर लेना। जो हमारा प्रिडिक्टेड स्कोर है, जो भी हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उससे अगर आपके 5 नंबर भी कम आ रहे हैं या 10 नंबर भी कम है, तब भी टाइम मत वेस्ट करिएगा। सर ने जैसा बताया, आप मेंस की तैयारी कर दीजिएगा। और दूसरी बात, जो बच्चे हमारे फाउंडेशन वाले हैं वो किसी भी तरीके का कन्फ्यूजन नहीं रखें ऐसा कि उनको कोई सेपरेट एक नया कोर्स लेना है। फाउंडेशन का बच्चा चाहे कभी का भी फाउंडेशन का हो, एसपीएम का 2019-20 या आगे आने वाले भी, जो अभी भी एडमिशन ले रहे हैं, आज भी जो ले रहे हैं, उन तक की बात कर रहा हूँ। आजकल जब भी लेना चाह रहे हो, आप फाउंडेशन के अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए मेंस की प्रिपरेशन के लिए आपको कुछ एडिशनल नहीं देना है। आपके लिए सब कुछ ऑलरेडी आपके फाउंडेशन में इंक्लूडेड है। आपको एडमिशन की क्वेरीज के लिए सर कुछ अभी इन्फॉर्मेशन, चिन्मय सर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे, जिसमें आपको बता देंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको किस नंबर पे कांटेक्ट करना है फाउंडेशन वालों के लिए। तो सर वो आपको बता देंगे, आप बस उन नंबर्स पर कांटेक्ट कर दीजिएगा और आपके लिए एक्सेस कर दिया जाएगा। सर आई थिंक आप ही एक बार बता दीजिए। हाँ, ऑलरेडी सर ने बोला जो है कि फीस जो है वो फाउंडेशन का नहीं है। हाँ, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी हो, अभी हम लोगों का जो अलग अलग नंबर्स होते हैं, हमारे स्टूडेंट जैसे जानते हैं कि स्टूडेंट हेल्पलाइन अलग हो गया या क्लासेस रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज़ के लिए अलग नंबर हो गए। तो अगर मेंस रिलेटेड कोई क्वेरी है, मेंस से रिलेटेड, ये कोर्स से रिलेटेड या टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग बस इसी नंबर पे कॉल कीजिएगा, क्योंकि यही करेक्ट लोग होंगे जो आपको सही इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। तो ना ही फैकल्टी को कॉल करने से आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिलेगा कि एडमिशन का प्रोसीजर वगैरह, और ना ही कोई दूसरे इंसान को पूछने से या दूसरे नंबर पे कॉल करने से। तो जो ये 3 नंबर यहाँ पे दिया गया है, यही 3 नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा, तो आप लोगों को ये मेंस कोर्स रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। आई होप ऑलमोस्ट सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे दिया गया है सारे। अगर इसके अलावा कोई क्वेरीज है तो यू कैन कंटेक्ट दिस नंबर, ये सारे नंबर पे आप कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट्स ऑल। तो चलिए, बेस्ट विशेस, स्टार्ट करते हैं जर्नी को। ठीक है, तो 3 तारीख को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। सो हेलो एभ्रिवान, ছাৰহঁতে অলৰেডি মেনশ্যন কৰি দিছে আপোনালোকক ইলাবৰেটলি যে কেনেকৈ কি ধৰণে আমাৰ কোৰ্চেছবিলাক ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' অলপমান মই ব্ৰিফিং আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। চ' ইয়াত স্ক্ৰীণত যোন 3টা আপোনালোকে নাম্বাৰ্ছ দেখি আছে, চ' আপোনালোকে যদি মেইনছত এনৰোল কৰিব বিচাৰিছে মেইনছ কোৰ্চত, তেতিয়াহ'লে এই 3টা নাম্বাৰ্ছৰ ভিতৰত আপোনালোকে যিকোনো এটা নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক মই আৰু 2টা নাম্বাৰ দেখাই আছোঁ, যি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টুডেণ্টছত এনৰোল হৈ আছে আৰু যাৰ 60তকৈ ওপৰ আহিছে কাট অফ, তো তেওঁলোকে এই 2টা নাম্বাৰ স্পেচিফিকেলি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আৰু সকলোৰে ৱেবছাইটত গ্ৰুপত অলৰেডি আমাৰ ভিডিঅ' দিয়া হৈছে যে তলত থাকিলে 60 তলত থাকিলে আৰু ওপৰত থাকিলে কি কৰিব লাগিব। তো সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাই ল'ব। এণ্ড কাইলৈৰ পৰা আপোনালোকে এইটো নাম্বাৰত কল কৰিব পাৰিব আফটাৰ 10 AM যদি কিবা আপোনালোকৰ ডাউট থাকে। দেন আৰু আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ, যি ছাৰহঁতে অলৰেডি মেনশ্যন কৰি দিছে ফি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা অনলাইন মেইনছৰ। চ' ইয়াতে দেখিছে মেইনছ অনলাইন ফিজ হৈছে 19,500। চ' এইটো হৈছে অনলাইনৰ আপোনালোকৰ মেইনছৰ কোৰ্চৰ ফিজ হয়। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ টেষ্ট ছিৰিজটো ইনক্লুড নাথাকিব। চ' আপোনালোকে যদি টেষ্ট ছিৰিজ বাই কৰিবলৈ হয়, আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ বাই কৰিব লাগিব। এণ্ড ফিজ যোনটো অফলাইনৰ কাৰণে হয় সেইটো চিমিলাৰ নহয়, এইটো ফিজ অকল অনলাইনৰ কাৰণেহে হয়। নেক্সট আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে যে যদি আপোনালোকে এপৰ পৰা ডাইৰেক্টলি পাৰ্চেজ কৰিব বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে আমি কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ ফাৰ্ষ্ট কমেণ্টত পিন কৰি পেলাই লিংকটো দি দিম, য'ত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি গৈ পেলাই পাৰ্চেজ কৰিব পাৰিব যিকোনো এটা কোৰ্চ, যোনটো মেইনছ কোৰ্চ একচুৱেলি। এণ্ড আপোনালোকে এই তিনিটা নাম্বাৰ যি দেখিছে,
আপোনালোকে পাৰচেজ কৰাৰ পিছত স্ক্ৰীনশ্বটটো এই তিনিটা নাম্বাৰৰ ভিতৰত যিকোনো এটা নাম্বাৰত আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো পঠিয়াই দিব পাৰিব। And for more details, you can contact in this number. Thank you.